Hello, dear students. Good afternoon, everybody. In a previous lecture, we have started a new topic, second unit, that is dealing with the nitrogen metabolism. I also have introduced all those things regarding the nitrogen metabolism. So today we are going to discuss a new topic, very interesting, very simple topic is there. Title of topic is nitrogen cycle. So you might have learned about different cycles. Actually this cycle, so nitrogen cycle. How this nitrogen is getting reused, recycled, recirculated in environment and in living system, that we are going to study in this topic, nitrogen cycle. नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है, नेचर में, एनवायरनमेंट में कौन से फॉर्म में है, हमारे बॉडी में कौन से फॉर्म है, प्लांट की बॉडी में कौन से फॉर्म में है. सो हाउ दिस नाइट्रोजन एलिमेंट इज गेटिंग assimilated, operated and accumulated in nature, in environment. That very interesting thing. तो ध्यान लगा के सुनिए. Actually if you Google it on Google, if you search that N2 cycle or nitrogen cycle, so you will get varieties of cycle, different types of nitrogen cycle from different websites, educational websites, research websites. So you will get different types of nitrogen cycle. I am interested, as far as your interest is concerned, I am going with a very simple cycle. You can extend your ideas into this, your literature into this, because nothing is limited here. You can add new things. Just I am going to tell you basics, whatever processes are there. So let us do with that nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? So see, the picture is before you. So what is nitrogen cycle? That cycle means what? Nitrogen, there is a path of nitrogen, and nitrogen which is entering into a system which will return to its original state. So this word cycle is used here. So try to understand how this nitrogen cycle is there. So we will start from this atmosphere. So nitrogen in atmosphere, which is in gaseous state. तो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में गैसियस स्टेट में होगा. सो देयर इज अबाउट 78%, 78.1, that is the actual value. So there is 78% of nitrogen in atmosphere. So that is in the form of gas, N2 gas, nitrogen. इसको ऐसा लिखते हैं N2, that is nitrogen. केमिस्ट्री में ऐसा लिखेंगे N triple bond N, that is nitrogen is in gaseous form. So that part we have to start. So firstly consider logically कैसा क्लियर रखना चाहिए इसको, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए. तो शुरुआत हम एटमॉस्फेयर से कर रहे हैं. आप कहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन एक इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम एटमॉस्फेयर से शुरुआत करें. दैट इज वी आर कंसिडरिंग हियर नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है दैट इज इन द गैसियस फॉर्म. तो उसका क्या होता है, तो इस नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसका फिक्सेशन होता है. ये पार्ट है. You can draw this diagram according to you, as per your convenience. So
मैं एक बात बता रहा हूं अभी कि इस नाइट्रोजन का क्या होता है, तो फिक्सेशन होता है इसका. सो दिस नाइट्रोजन इज बीइंग फिक्स्ड. Who fixes this nitrogen? That I told last time in previous lecture. So there are bacteria, there are BGA, blue green algae. So these are most popular agents of nitrogen fixation. Actually these are considered under बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये एक पार्ट होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अभी मैं एक बात बता रहा था कि फिक्सेशन होता है इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है. सो नाइट्रोजन इज बीइंग फिक्स्ड. सो नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड. यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ दिखाया हुआ है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिर्फ एक ही दिखाया हुआ है यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहाँ है? ऐसा क्यों कहा है सिर्फ? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये ज़्यादा तौर पे चलता है. सो इट इज ऑपरेटेड इन एमनंट अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हुआ एक पॉइंट. लेकिन फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, ध्यान में रखिए. फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है. तो कैसे होगा सर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखिए जब बादल आते हैं, सो व्हेन देयर इज क्लाउडिंग इन स्काई, सो देयर विल बी लाइटनिंग. तो बिजली गिरेगी, लाइटनिंग हो जाएगा, तो बिजली गिरेगी, तो ऊपर से बारिश की बूंदें भी गिरेगी. तो एक तो है, पहला तो कारण हुआ ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. दूसरा है लाइटनिंग, बिजली गिरती है तो उसके वजह थोड़ा होता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लाइटनिंग की वजह से. सो लाइटनिंग है. रेनिंग है, रेन की बूंदें, बारिश की बूंदें जब नीचे आती है, रेन ड्रॉप्स वेन एवर कमिंग टू अर्थ, सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is coming to earth also. So due to lightning, due to raining also this nitrogen fixation is taking place. So this is also called physical nitrogen fixation. तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है. और एक टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं खेती बाड़ी में हमारे. सो यू आर एडिंग फर्टिलाइजर्स, रेडिली अवेलेबल फर्टिलाइजर, रेडिली अवेलेबल नाइट्रोजन यू आर एडिंग इनटू सॉइल. सो दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. सो ये बातें हैं फिक्सेशन में. तो पहला पार्ट हमने पढ़ा साइकिल में कि फिक्सेशन होता है. तो हुआ फिक्स, अभी फिक्स हुआ नाइट्रोजन, तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने फिक्सेशन. रिमेंबर कीजिए इसको, पहला ये पार्ट पढ़ाया सर ने फिक्सेशन वाला. तो फिक्सेशन खत्म हुआ अभी. तो फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन होने के बाद में क्या होगा? ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा. ये फाइनली रिजल्ट क्या होगा? फिक्सेशन होके नाइट्रोजन कहाँ पे आएगा? सॉइल में आएगा. ये एक अल्टीमेट रिजल्ट है. तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ तो ये सॉइल में आ जाएगा. इसका डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. अगर ये नाइट्रोजन सॉइल में आया हुआ है तो इसका डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है, तो ये सॉइल में आ जाएगा. सो डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद में तो नाइट्रोजन जो फिक्स हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा. तो बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, फर्स्टली टू नाइट्राइट्स एंड देन टू नाइट्रेट्स. पहले तो नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का और बाद में नाइट्रेट्स में.
Nitrite means NO2 minus and nitrate means NO3 minus. तो ये हुआ इसका. एक्चुअली जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उसका पहले तो कन्वर्जन होगा अमोनिया में, अमोनिया का कन्वर्जन होगा नाइट्राइट में एंड नाइट्रेट का कन्वर्जन होगा नाइट्रेट में. अल्टीमेटली व्हाट इज द सोर्स? नाइट्रेट इज द सोर्स इन द सॉइल. अब ये जो नाइट्रेट आया हुआ है सॉइल में NO3 माइनस नाइट्रेट, तो ये कहाँ पे आया हुआ है? सॉइल में आया हुआ है. ये इस्तेमाल किया जाएगा बाय प्लांट. तो प्लांट इसे खा लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे थ्रू रूट्स. तो रूट एब्सॉर्ब कर लेंगी वाटर के माध्यम से, वाटर में घुल जाएगा NO3 माइनस. ये बात हमेशा ध्यान में रखना, प्लांट नाइट्रेट्स एब्सॉर्ब करते हैं. नाइट्रेट्स, नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है NO3 माइनस. ये एक एनायन है NO3 माइनस, नॉट NO2 माइनस इज एब्सॉर्ब. So NO3 minus that is nitrate in the soil that is absorbed by the plant. यहाँ पे एक एरो दिखाना भूल गए हैं ये लोग, तो आप दिखा दीजिए आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो. So nitrogen is uptaken by those plants. So दूसरा एक बात है, क्या है? ये जो नाइट्रेट आया हुआ है, nitrogen in the form of nitrates, it may undergo process of denitrification. उसका denitrification हो सकता है और फाइनली नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा. तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया होगी, अनएरोबिक एरोबिक टाइप की, मोस्टली अनएरोबिक टाइप की बैक्टीरिया होती है वहाँ पे. सो दिस बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसे कहते हैं. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया will do process of denitrification and ultimately nitrogen will be released to the atmosphere. Next point, what is this nitrates, nitrogen coming in soil which is absorbed by the plants. नाइट्रोजन का absorption किया जाएगा प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स absorb करेंगे नाइट्रोजन को, तो प्लांट फूड बनाएंगे इसको. तो प्लांट खुद फूड बनता है, तो प्लांट को ईट करता है. कौन ईट करता है प्लांट को? एनिमल ईट करते हैं. हम लोग बर्निंग करते हैं, तो आप लोग चूल्हा जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ जलाते हो, तो उस वाइल बर्निंग ऑफ दैट कोल फ्यूल कोल, सो नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो प्लांट को खा जाएगा एनिमल, तो एनिमल का लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद में डेथ हो सकता है, प्लस एनिमल के लाइफ साइकिल में खाने के बाद एक्सक्रीशन हो सकता है. एक्सक्रीशन होता है तो भी यूरिन एक्सक्रीशन, फेकल मैटर एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन के दौरान नाइट्रोजन बाहर निकलती है, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, प्लस सॉइल में भी चली जाएगी. एक्सक्रीशन होता है तो एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा नाइट्रोजन और सॉइल में भी चला जाएगा. सो एनिमल्स एंड प्लांट, इन दोनों का डेथ एंड डिके हो सकता है. लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद में तो डेथ होना ही है. सो लाइफ साइकिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल डेथ इज टेकिंग प्लेस. सो डेथ, आफ्टर डेथ एंड डिके, बैक्टीरिया, different microbes are attacking on that dead body and they are doing ammonification, denitrification, ammonification, forming ammonia. ammonia बाद में soil में आएगा by the process of nitrification. तो nitrate फिर बाद में soil में आ गए and that is being used by the plant. nitrate बाद में soil में आएंगे, फिर जो नए plants है वो उसका इस्तेमाल करेंगे. So these processes are repeated over वन अनादर. सो यही है नाइट्रोजन साइकिल, कुछ और नहीं है. पहले तो बात आई फिक्सेशन, उसके बाद में अमोनिफिकेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, देन टू फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, nitrification,
नाइट्रिफिकेशन के बाद में लास्ट वाला प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है। हाँ, देखो इतना सा सिंपल प्रोसेस है, यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। सो फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are present in soil or in association with the root nodules that you might have studied in your previous classes. Rhizobium is an example. So this was all about nitrogen cycle. If there is doubt remaining, you can ask. So for today we will stop here. Thank you one and all. Try to refurbish this topic. So stay home, stay safe. Thank you once again.